Hi folks, so today we are going to start with the GA plus ESI portion of the 1st and 7th July wala week. ठीक है, so launch of National Biobank and Longitudinal Population Day study by CSIR IGIB. Union Minister for Science and Technology inaugurated the Phenom India National Biobank, first ever, and launched India's own longitudinal population data study at Council of Scientific and Industrial Research CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology. तो एक नेशनल बायोबैंक को लॉन्च किया गया एंड लॉन्गिट्यूडिनल पॉपुलेशन डेटा स्टडी किया गया बाय सीएसआईआर आईजीआईबी। सीएसआईआर क्या है? जो आईजीआईबी है उसका नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। The bank will collect genomic data, lifestyle, and clinical data from 10,000 individuals across India and modeled on the UK Biobank. The Indian version is tailored to capture India's genetic and cultural diversity. The initiative is part of the Phenom India project. ठीक है। ये हो गया repository that stores biological sample for use in research. फिर establishment of Tribhuvan Sahakari University. Union Ministry of Cooperation laid the foundation stone of India's first national level cooperative university, Tribhuvan Sahakari University in Anand, Gujarat. The university will connect with over 200 cooperative institutions across the country within the next 4 years to form a national cooperative education network. तो त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी में हमको पता है कि ठीक है, कोऑपरेशन जो मिनिस्टर है ना, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, वो फाउंडेशन स्टोन ले करेगा क्योंकि उस त्रिभुवन का मतलब ये होता है कि कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाना, है ना। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी कहाँ पे? आनंद, गुजरात। उसके बाद आता है रीनेमिंग ऑफ NIPCCD, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट has been renamed as Savitribai Phule National Award of Women and Child Development, and a new regional center is set to be inaugurated in Ranchi. NIPCCD मतलब National Institute of Public Cooperation and Child Development has been renamed as the Savitribai Phule National Institute of Women and Child Development. ठीक है, तो एक इंस्टीट्यूट है उसका नाम सावित्रीबाई फुले ऐसे कर दिया है, एंड न्यू रीजनल सेंटर इज सेट टू बी इनॉग्रेटेड इन रांची। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो इंस्टीट्यूट वाज रीनेम्ड NIPCCD इन 1975। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली करते क्या है कि सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, एक बेसिकली एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है इन लोगों के लिए, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। CBA इंडिया रीजन जोन 2 एनुअल कॉन्फ्रेंस, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में है। हिमाचल विधानसभा इज द फर्स्ट पेपरलेस लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया। उसके बाद है यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर का ऑफिशियल विजिट टू स्पेन, पोर्तुगल एंड ब्राजील। The Corporate Affair Union Minister for Finance and Corporate Affair embarked on an official visit of Spain, Portugal and Brazil. ये है। अब देखते हैं इंडिया यूएई कोलैबोरेशन इन ग्रीन स्टील एंड हाई ग्रेड एल्यूमिनियम। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील with the UAE Minister of Economy explore bilateral collaboration in green steel and high grade aluminum under the India UAE SEPA framework. इंडिया का गोल है to reach 300 million tons of steel production by 2030. इंडिया इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। ठीक है, पहले चाइना आता है उसके बाद इंडिया आता है। और इंडिया यूएई कोलैबोरेट कर रहे हैं ग्रीन स्टील एंड हाई ग्रेड एल्यूमिनियम के लिए। तो इंडिया का जो गोल है वो है कि टू रीच 300 मिलियन टन्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन बाय 2030 वाज हाईलाइटेड। ठीक है, 300 मिलियन टन। 17 ब्रिक्स समिट,
The Prime Minister of India participated in the 17th BRICS summit held in Rio de Janeiro, Brazil. Theme is strengthening global South cooperation for a more inclusive and sustainable governance. ठीक है। सो पीएम इंडिया जो है पार्टिसिपेट किया 17 इन रियो डी जेनेरो। एंड थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन। जितने भी साउथ वाले कंट्रीज है उसका साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर inclusive and sustainable governance. BRICS welcome India's candidacy to host United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC COP33 in 2028. अभी not officially selected। यह है कि ब्रिक्स वेलकम किया है इंडिया का कैंडिडेसी टू होस्ट यूएनएफसीसी इन COP33 इन 2028, बट इट हैज नॉट बीन सेलेक्टेड येट। ठीक है। 8 साल हो गए जीएसटी को। तो जो जीएसटी के काउंसिल 8 years ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी काउंसिल अचीवमेंट्स क्या क्या? मेजर रेट रिडक्शन हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जो 12% से 5% हो गया। अफोर्डेबल हाउसिंग 8% टू 1%। तो जीएसटी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाउसिंग जो दोनों नेसेसरी अभी आइटम हो गया, उसमें जीएसटी कम कर दिया है। तो 12% पहले लगता था इलेक्ट्रिक व्हीकल में, अब 5% लगेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग 5% लगता था पहले, अब 8% लगता था, 1% लगेगा। Key legal clarification: example, vouchers are neither goods nor services. Gene therapy is exempted from GST. वाउचर ना ही गुड है ना ही सर्विसेज है। और जीन थेरेपी इज एक्सेप्टेड फ्रॉम जीएसटी। ई इनवॉइसिंग फॉर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन नाउ मैंडेटरी फॉर फर्म्स विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 5 करोड़ और मोर। ठीक है। ई इनवॉइसिंग फॉर B2B ट्रांजैक्शंस। अभी जिनका भी एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है, अभी वो मैंडेटरी है इनवॉइसिंग। Creation of GST Appellate Tribunal to ensure quicker resolution of disputes with the principal bench in New Delhi and state benches as required. तो सबके लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल हो रही है इसमें भी, कि कोई भी लफड़ा हुआ तो उसमें ये लोग क्विक रेजोल्यूशन कर पाए फॉर डिस्प्यूट्स। ठीक है। तो उसका एक प्रिंसिपल बेंच बनेगा न्यू दिल्ली में एंड स्टेट बेंच एज रिक्वायर्ड। क्रिएशन ऑफ जीएसटी बेंच अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है। फिर देखते हैं परफॉर्मेंस और एंड इनिशिएटिव्स ऑफ द एमएसएमई सेक्टर। अब उसमें क्या चल रहा है? एमएसएमई सेक्टर अकाउंट्स फॉर 30.1% ऑफ जीडीपी, राइट। 35.4% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एंड 45.73% ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो ये याद रखना है। क्या है एमएसएमई सेक्टर? 30.1% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है, तभी तो हमारा जीडीपी बढ़ रहा है इनके कारण। 35.74% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। और इसकी वजह से जो अब बना रहे तो बेचेंगे भी ना बाहर, तो एक्सपोर्ट्स भी हो रहा है। तो ठीक है, पहले इंडिया का जीडीपी, ठीक है हम लोग इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें। सबसे मेन फैक्टर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगर एक्स्ट्रा जो बचेगा वो तो एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट में भी 45.73% है। 30.1% जीडीपी, 35.74%, 35.4% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, एंड जो बच गया वो इसमें जाएगा, एक्सपोर्ट्स में जाएगा। सो विच इज 45.73% ऑफ एक्सपोर्ट्स। अब एसबीआई का प्लान क्या है? टू सोलराइज 4 million homes बाय FY27। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड इट्स प्लान्स टू सोलराइज 4 million homes बाय फाइनेंशियल ईयर 2027। 4 million घर बाय FY 2027, अलाइनिंग विद इंडियाज गोल ऑफ सोलराइजिंग 10 million homes। In December 2024, SBI signed a 90.5 million लोन का जो डॉलर इम्पैक्ट है, पैक्ट विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स। ठीक है। एसबीआई क्या है? हैज अनाउंस्ड इट्स प्लान टू सोलराइज 4 million homes बाय FY 2027। वो हमको पता चल गया। ठीक है। सोलराइज करेगा 4 million घर को बाई 2027 में, अलाइनिंग विद इंडियाज गोल ऑफ सोलराइजिंग 10 million homes। अब जो गोल है वो तो है कि 10 million घर पे सोलर सोलर पैनल होना चाहिए। ठीक है। दिसंबर 2024 में क्या हुआ? एसबीआई ने साइन किया एक $90.5 million का लोन पैक्ट विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स। ठीक है। एडीबी के साथ एसबीआई ने अब एक पैक्ट साइन किया कि सोलराइज करेगा, और उस वो कितना था? $90.5 million। ठीक है।
एक ट्रेड फाइनेंस सेंटर भी कोलकाता में बनेगा और डेटा लेक हाउस प्रोजेक्ट टू डिलीवर रियल टाइम एआई इंसाइट्स। अब सोलर रूफटॉप प्रोग्राम क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम तो एसबीआई एंड नाबार्ड to enable the SBI and NABARD to implement the subsequent tranches, the MFF availability. ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी became the oversight body to supervise overall program implementation। तो SRIP बेसिकली क्या है? अ, जो SBI एंड नाबार्ड है टू इम्प्लीमेंट द सब्सिक्वेंट ट्रांचेस। ठीक है, SBI और नाबार्ड ये लोग सब्सिक्वेंट ट्रांचेस को इम्प्लीमेंट कर पाए। MFF अवेलेबिलिटी मतलब मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग फैसिलिटी। ठीक है। तो एस बी आई हैज अनाउंस्ड टू सोलराइज 4 मिलियन होम्स, ये देख लिया, बाय FY 2027। जो एक गोल है हमारा 10 मिलियन होम, तो 4 मिलियन हो गया। $90.5 मिलियन का एक पैक्ट साइन किया हुआ था एडीबी। ठीक है, और उसके बाद एस बी आई नाबार्ड दोनों एक साथ इम्प्लीमेंट करेंगे द सब्सिक्वेंट ट्रांचेस। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बिकम द ओवरसाइट बॉडी टू सुपरवाइज ओवरऑल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। European Union's 2040 climate target, 2040 emissions target. EU aims to cut net greenhouse gas emissions by 90% from 1990 levels by 2040। ठीक है, तो 2040 का जो एमिशन टारगेट है, EU aims to cut net greenhouse gas emissions। ठीक है, एमिशन टारगेट है 2040 का कि यूरोपियन यूनियन एम करता है टू कट नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 90% फ्रॉम 1990 लेवल्स बाय 2040। यूरोपियन यूनियन, ठीक है, 1990 से 2040 तक जो आएगा 2040 में एम कर रहा है कि हमारा 90% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कट डाउन हो जाए। ऑब्जेक्टिव है अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2050, और 90% वो अचीव कर लेगा 2040 में। ठीक है। इंडिया ग्रीन फाइनेंस फैसिलिटी, द एशियन डेवलपमेंट बैंक इन पार्टनरशिप विद ग्रीन क्लाइमेट फंड। अभी देखा हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करा था, एसबीआई के साथ कर रहा था सोलराइज करने के लिए। वही एशियन डेवलपमेंट बैंक अभी इन पार्टनरशिप विद द ग्रीन क्लाइमेट फंड हैज लॉन्च्ड द इंडियन ग्रीन फाइनेंस फैसिलिटी। ठीक है, इंडिया ग्रीन फाइनेंस फैसिलिटी, एडीबी, इन पार्टनरशिप विद ग्रीन क्लाइमेट फंड। और वो लोग एक इंडिया ग्रीन फाइनेंस फैसिलिटी बनाएंगे। ठीक है। एडीबी का फर्स्ट कोलैबोरेशन है विद जीसीएफ इन इंडिया ग्रीन क्लाइमेट फंड। एस्टैब्लिश हुआ हुआ है 2010 ग्रीन क्लाइमेट फंड अंडर द कैंसन एग्रीमेंट्स मैक्सिको, सोंगडो डिस्ट्रिक्ट, साउथ कोरिया। हेडक्वार्टर है इसका, ग्रीन क्लाइमेट फंड का। फिर सीबीडीटी रिवाइजेस कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सीआईआई फॉर FY 2026। The Central Board of Direct Taxes has revised the cost inflation index from 363 to 376। ठीक है, has revised the cost inflation index from 363 to 376। Scope है limited by Finance Act। Indexation is allowed only for assets bought before July 23, 2024। तो सीबीडीटी है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, रिवाइज द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फ्रॉम 363 टू 376। ठीक है, प्रोवाइडिंग टैक्स रिलीफ ऑन कैपिटल गेन्स फॉर एसेट्स परचेज बिफोर जुलाई 2024। ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूज टू एडजस्ट द ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ एन एसेट सो दैट यू पे टैक्स ओनली ऑन द रियल प्रॉफिट, नॉट जस्ट ऑन प्राइस इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो हम बेसिकली जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसमें जो भी इन्फ्लेशन जो होता है बाद में उस पे नहीं टैक्स देना, जो रियल प्रॉपर्टी है उसी पे टैक्स देना। तो उसका जो रेट है वो रिवाइज हो गया 363 टू 376। इंडेक्सेशन इज अलाउड ओनली फॉर एसेट्स बॉट बिफोर जुलाई 23, 2024। तो जुलाई 23 के पहले जो भी खरीदा गया है उस पे एप्लीकेबल है। एग्जाम्पशन ऑफ यूएस मल्टीनेशनल्स फ्रॉम ग्लोबल मिनिमम टैक्स बाय G7। The G7 under Canada's presidency announced that US multinational firms
would not be subject to the global minimum tax imposed by other countries, allowing taxation solely in the US on both district and foreign profit. तो कनाडा प्रेसिडेंसी के अंदर अनाउंस किया कि यूएस मल्टीनेशनल फर्म जो है would not be subjected to the global minimum tax imposed by other countries, allowing taxation solely in the US on both domestic and फॉरेन प्रॉफिट। और ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या है? ओईसीडी ने प्रपोज किया था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, किया टू पिलर फ्रेमवर्क है फॉर टैक्सिंग मल्टीनेशनल्स, with pillar 2 mandating a 15% global minimum tax rate. Companies with earnings above 750 million euro are subject to the new 15% rate। ठीक है, टू पिलर फ्रेमवर्क फॉर टैक्सिंग मल्टीनेशनल विद पिलर 2, जो मैंडेटिंग है 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट होना ही चाहिए। ठीक है, 15% मिनिमम ग्लोबल टैक्स रेट जो पिलर 2 में बोलता है, कंपनीज विद अर्निंग 750 million euro above आर सब्जेक्ट टू द न्यू 15% रेट। ठीक है, तो एक इंटरनेशनली अग्रीड अपॉन मिनिमम रेट ऑफ टैक्सेस है दैट वुड बी पेड बाय लार्ज कॉर्पोरेशन, उसमें 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट हमको देना ही है। तो कंपनीज विद अर्निंग अबव 750 million euro आर सब्जेक्ट टू द न्यू 15% रेट। ठीक है, तो ईएसआई का ये वाला पार्ट कंप्लीट।